Now problem number 4. Calculate the number of molecule in 9 gram of कार्बन डाइऑक्साइड. हमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर? 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर. फर्स्ट वी मेक डाटा गिवन फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब फॉर्मूला मास निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का. व्हाट इज़ द वैल्यू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? यस 12. अब कितनी प्रेजेंट है इसमें? नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन कितनी तादाद में मौजूद है स्टूडेंट्स? 2. एटॉमिक मास क्या है हमारे पास ऑक्सीजन का? 16. 12 1 ज़ा 12 प्लस 2 16 ज़ा 32. अब आप इसको सम अप करें, क्या आएगा हमारे पास आंसर? 44. फॉर्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44. मास ऑफ सब्सटेंस 9 ग्राम. कितना दिया हुआ हमें? 9 ग्राम. और एवोगाड्रोस नंबर क्या है? Na स्टैंड फॉर एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज़ 6.02 एक्सपोनेंट 23. रिक्वायर्ड क्या मालूम करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस divided by formula mass. Number of molecules, we write the formula again. Na क्या है मेरे पास? एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस. मास ऑफ सब्सटेंस हमें कितना दिया गया स्टूडेंट्स? 9 डिवाइडेड बाय फार्मूला मास. फार्मूला मास हमारे पास कितना निकला है? 44. अब हम पहले क्या करेंगे? 6.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से. द आंसर इज 54.18 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 44. अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 44 से, क्या आंसर आएगा हमारे पास? 1.231 एक्सपोनेंट 23 molecules of carbon dioxide. Now you have to write result. Number of molecules is 1.231 exponent 10 to power 23 present in 9 gram of कार्बन डाइऑक्साइड. यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1.231 एक्सपोनेंट 23 प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स. व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स? वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम. हमें मास मालूम करना है 1 एटम का ऑफ कार्बन इन grams. First we make data given. We know Avogadro's number, Na stand for Avogadro's number, 6.02 exponent 23. Atomic mass of carbon is 12 gram. Required, what we have to find? Mass of 1 atom is equal to question mark. यानी क्या मालूम करना है? question mark. Formula mass of 1 atom is equal to atomic mass in grams divided by Avogadro's number. Solution, we repeat the formula. Mass of 1 atom is equal to atomic
mass in grams divided by Na. What is the atomic mass of carbon? 12 divided by Avogadro's number 6.202 exponent 23. When we divide 12 divided by 6.02 exponent 23, we get 1.993. Calculate the mass of one atom of carbon in grams. Data. What we have to find, students? We have to find the mass of one atom of carbon in grams. First we make data. Given number of Avogadro's number is equal to 6.02 exponent 23. Atomic mass of carbon, we know that the atomic mass of carbon is 12 gram. Required mass of one atom. Formula: mass of one atom is equal to atomic mass in grams divided by Avogadro's number. Solution: repeat the formula. Mass of one atom is equal to atomic mass in grams divided by Na, mean Avogadro's number. What is the mass of carbon? Atomic mass of carbon 12. What is the value of Na? 6.02 exponent 23. When we divide 12 divided by 6.02, we get 1.993. Now we have here exponent in positive power. जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा. 10 23 नेगेटिव होगा तो आगे क्या लगाएंगे उसके? माइनस ग्राम. 1 atom of carbon is equal to 1.993 exponent minus 23 gram. Now calculate the mass of one molecule of water in grams. What we have to find, students? We have to calculate the mass हमें calculate करना है of one molecule. एक molecule का, किसका? water का. H2O, the formula of water is H2O in grams. First we make data. Given क्या चीज़ हमें दी हुई है? formula mass हमें निकालना है H2O का. कैसे निकालेंगे हम? What is the value of hydrogen? Atomic mass क्या है हाइड्रोजन का? 1. Number of atomic atom present in H2O 2. कितने present है? 2. तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. प्लस what is the atomic mass of oxygen? 16. कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है H2O के अंदर ऑक्सीजन के? 1 मल्टीप्लाई बाय 1. 1 2 ज़ा 2, 16 1 ज़ा 16. When we sum up 2 plus 16, we get 18. We get 18 formula mass of H2O. The Avogadro's number is constant. Na is equal to 6.02 exponent 23. Required mass of molecule, हमें क्या मालूम करना है? mass of molecule. मास ऑफ मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला है हमारे पास? फर्स्ट वी राइट डाउन द हेडिंग. फार्मूला: मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फार्मूला मास इन ग्राम्स. फार्मूला मास को हम ग्राम्स में लेकर डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से. आफ्टर सॉल्यूशन हेडिंग वी राइट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, फार्मूला मास divided by Na. What is the value of formula mass? हमने क्या निकाला है formula mass H2O का? 18 divided by 6.02 exponent 10 to power 23. When we divide 18 to 6.02 exponent 23,
वी गेट 2.90। अब एक्सपोनेंट देखें, जब हम डिवीजन करेंगे तो 18 को डिवाइड करेंगे 6.02 का से, एक्सपोनेंट वैसे के वैसे ही रहेगा। लेकिन जब हमने डिवाइड करके आंसर आया है, क्या आया आंसर 2.90। एक्सपोनेंट यहाँ पे डिवीजन हो रही है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी इससे पहले 23 से पहले माइनस लगाएंगे 23। नाउ व्हाट इज आवर रिजल्ट, द मास ऑफ one molecule of H2O is equal to 2.90 exponent minus 23। दिस इज़ आवर रिज़ल्ट। फिर हम रिज़ल्ट की हेडिंग डाल देंगे। What number of oxygen atoms is present in 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं किसके ऑक्सीजन के, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट वी मेक डाटा गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन इस कितना दिया हुआ है हमें, मास ऑफ ऑक्सीजन 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे मॉलिक्यूल इसमें कि उसमें प्रेजेंट है, यानी O2 है। ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है O2, तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे। अब ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या है 16। इसका कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में 2, तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 16 2 ज़ा 32। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया हमारे पास 32। एवोगाड्रोस नंबर, इट इज़ कॉन्स्टेंट। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या है हमें मालूम करना है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ एटम्स Na मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं हमने, नंबर ऑफ एटम्स लिखे हैं हमने, इज इक्वल टू Na कितना है हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस। मास हमें कितना दिया हुआ है 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है ऑक्सीजन O2 का 32। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 6.02 टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 32 से। देन वी गेट 0.7525 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। कितने हमें एटम्स मिले, नंबर ऑफ एटम्स is equal to 0.7525 exponent 23 atoms are present in 4 gram of oxygen. Now students, we have to balance the equation. What is the meaning of balance the equation? आपको क्वेश्चन से ही लग रहा होगा कि हमें बैलेंस करनी है इक्वेशंस को। हमारे पास एक इक्वेशन है C+O2 प्रोड्यूस्ड CO। अब बिफोर दिस इज़ एरो, इस एरो से पहले जो लिखा होता है इसको कहते हैं रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड, और प्रोडक्ट जो है हमें वो राइट साइड पे मिलता है। दीज आर द रिएक्टेंट एंड दीज आर द प्रोडक्ट। बिफोर बैलेंसिंग आपको ये हेडिंग डालनी है, बिफोर बैलेंसिंग, देन यू हैव टू राइट रिएक्टेंट के रिएक्टेंट की हेडिंग डालेंगे, फिर प्रोडक्ट की। अब देखिए रिएक्टेंट में आपको C स्टैंड फॉर कार्बन, C के कितने एटम मौजूद हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी 1 मौजूद है, ये C इज इक्वल टू 1। O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, O इज इक्वल टू कितने मौजूद हैं यहाँ पे 2 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब प्रोडक्ट में देखें C हमारे पास कितना है 1, इस कार्बन का जो हमने C लिखा है इसकी लाइन आगे लिखेंगे C इज इक्वल टू 1, और O यहाँ पे क्या है 1,
O इज इक्वल टू 1। अब देखिए आप स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट में हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है 2 और प्रोडक्ट में है हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1। तो ये बैलेंस हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। अब इसके यहाँ तक आप पेन से करने के बाद आप करेंगे यू हैव टू यूज़ योर पेंसिल, ताकि अगर कोई चीज़ आप गलत हो जाए तो आप रब करके दोबारा कर सकें। अब पहले आप यहाँ पे पेंसिल से जो ऊपर इक्वेशन लिखी है इसको कॉपी करें, CO। अब देखिए आपको रिएक्टेंट में ऑक्सीजन O जो है वो 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। अगर हम यहाँ ऑक्सीजन के प्रोडक्ट के अंदर 2 लगा देते हैं तो कार्बन भी हमारे पास 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ये बैलेंस हो जाएगी। लेकिन बैलेंस यहाँ तो हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया हमारे पास 2 हो जाएंगे। और रिएक्टेंट में कितने हैं हमारे पास कार्बन 1 है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ लगाया 2 तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं 2। अब यहाँ जब हमने 2 लगाया रिएक्टेंट में तो हमारे पास कार्बन ऑफ एटम कितने हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए 2 और नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो 2। और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहे हैं, कार्बन एटम 2 मिल रहे हैं और प्रोडक्ट में कार्बन ऑक्सीजन एटम भी 2 मिल रहे हैं। तो हम यहाँ 2 लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो सकती है। जब आपने बैलेंस कर ली इक्वेशन उसके बाद आप इसको ब्लू पेन से करें, C ब्लू इंक पेन, यू हैव टू यूज़ ब्लू इंक पेन। C2C प्लस O2 प्रोड्यूस 2CO। अब हमें इसको आफ्टर बैलेंसिंग करके दिखाना है कि हमने ये वर्बली तो कर लिया कि बैलेंस इक्वेशन हो गई, हमने यहाँ करके भी दिखानी है। अब देखें C जो था, अब यहाँ हमारे पास 2 लगाए तो कितने हो गए 2 हो गए। ऑक्सीजन कितना है 2। अब यहाँ हमने जब 2 लगाया तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए 2 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए 2। अब बिफोर रिएक्शन हमारे पास ये ऑक्सीजन की जो तादाद थी वो अनइक्वल थी, लेकिन आफ्टर बैलेंसिंग वी गेट इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बिफोर इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट। अब कार्बन एटम भी हमारे पास कितने हैं 2, प्रोडक्ट में भी कितने मिल रहे हैं 2। ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2, प्रोडक्ट में भी कितने मिल रहे हैं 2। अब इसके बाद जब हमने बैलेंस कर ली यू हैव टू यूज़ ब्लैक पॉइंटर। अब यहाँ फिर लिखेंगे, यहाँ हेडिंग डालेंगे बैलेंस इक्वेशन की, बैलेंस इक्वेशन। क्या इक्वेशन आई है हमारे पास 2C प्लस O2 प्रोड्यूस्ड 2CO। So our equation is balanced. Now students, we have a second equation to solve. CaCO3 plus HCl CaCl2 plus H2O plus CO2. First we make before we balancing reactant में हमारे पास क्या है, पहले Ca लिखते हैं। Ca कितने हैं बिफोर रिएक्शन 1। फिर हमारे पास C कार्बन के कितने एटम है C1। फिर हमारे पास O ऑक्सीजन के कितने एटम है आप इन रिएक्टेंट 3। फिर H देखें, H के कितने एटम हैं 1 और Cl स्टैंड फॉर एक ही है ये क्लोरीन, इसके कितने आइटम है 1। प्रोडक्ट में कितने हैं हमारे पास कैल्शियम Ca कितने हैं देखें 1। Cl कितना है हमारे पास, Cl देखें कहाँ लिखा हुआ है, या Ca के साथ क्या Cl। अब देखें यहाँ हमने क्या लिखा है, ये लिखा Cl, इसके सामने ही Cl लिखेंगे प्रोडक्ट का। Cl कितने हैं यहाँ पे 2 इजिकल टू 2। यहाँ पे है फिर हमारे पास H2, H कहाँ लिखा है हमने रिएक्टेंट में यहाँ, अब इसके सामने ही प्रोडक्ट का H भी लिखेंगे। H कितने हैं प्रोडक्ट में 2। फिर O है हमारे पास, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, कितने हैं ये 1 और ये 2, कितने हो गए 1 + 2 इजिकल टू 3। फिर हमारे पास है C कार्बन कितना है 1। अब देखें हमारे पास कहाँ चेंजिंग आ रही है, हमारे पास कहाँ क्या चीज़ नहीं है। कैल्शियम भी 1 है रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी, कार्बन भी 1 है रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी।
ऑक्सीजन भी 3 है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन 1 है और प्रोडक्ट में कितना है 2। क्लोरीन 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है हमारे पास 2 है। अब हमारे पास कहाँ चेंज है 2 जो है हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है AHNCl और प्रोडक्ट में कितने आ रहे हैं हमारे पास HNCl2। नाउ वी यूज़ पेंसिल टू सॉल्व इट। CaCO3, देखिए ये कैल्शियम भी हमारे पास रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, कार्बन भी 1 है रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी, ऑक्सीजन भी 1 है रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी, तो हम इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, प्लस HCl। अब HCl जो है हमारे पास वो रिएक्टेंट में कितना है 1 और प्रोडक्ट में कितना आ रहा है 2, यानी यहाँ ये अनबैलेंस है। अगर हम यहाँ इसके आगे पहले 2 लगा दें तो H भी हमारे पास 2 हो जाएगा और Cl भी 2 हो जाएगा, तो ये आपस में बैलेंस हो जाएंगी। फिर Ca प्रोडक्ट में कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, CaCl2 प्लस H2 प्लस CO2। अब देखें हम आफ्टर बैलेंसिंग की हम बनाते हैं। आफ्टर बैलेंसिंग रिएक्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास Ca है, Ca यहाँ पे क्या है 1 C कार्बन कितना है 1 इन रिएक्टेंट, O कितना है 3 H कितना है, अब हमने 2 लगाया तो H कितना आ रहा है हमारे पास 2 और Cl क्लोरीन कितना आ रहा है 2, हमने जो 2 लगाया है। प्रोडक्ट में लिखेंगे Ca के सामने हम Ca लिखेंगे, कैल्शियम के आगे कैल्शियम कितना है प्रोडक्ट में भी 1, फिर हमारे पास Cl2 है, यहाँ पे Cl हमारे पास कहाँ है ये रहा रिएक्टेंट में, इसके आगे लिखेंगे, प्रोडक्ट में भी Cl2 हो गया। फिर है H कहाँ है रिएक्टेंट में, उसके आगे लिखेंगे H यहाँ भी 2 हो गया 2। फिर है हमारे पास O देखें रिएक्शन में कहाँ है, इसके आगे ही हम O लिखेंगे O 2 and 1 3 C कितना आएगा हमारे पास यहाँ 1, यहाँ भी 1 आ गया। अब देखें सारे बराबर हैं, बिफोर रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। कैल्शियम 1 इन प्रोडक्ट, कार्बन 1 इन रिएक्टेंट, कार्बन 1 इन प्रोडक्ट, ऑक्सीजन 3 इन रिएक्टेंट, ऑक्सीजन 3 इन प्रोडक्ट, हाइड्रोजन 2 इन रिएक्टेंट, हाइड्रोजन 2 इन प्रोडक्ट, क्लोरीन 2 इन रिएक्टेंट, क्लोरीन 2 इन प्रोडक्ट। नाउ हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, आफ्टर बैलेंसिंग की जो हमने लिखा है इसके बाद हम इसको ब्लैक पॉइंटर से कर देंगे ताकि जो चेकर होगा वो हमारा आराम से उसको पता चल जाए कि कौन सी जो हमने बैलेंस इक्वेशन लिखी है। बैलेंस इक्वेशन अब देखें क्या आई है हमारे पास Ca जो हमने बैलेंस करके लिखी Ca3 प्लस 2HCl प्रोड्यूस CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2।